بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کیا ہے وذ جنید انصاری. آج کا جو پروگرام ہے پوری دنیا میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں, میری بات سن رہے ہیں. میں آزاد جموں کشمیر کے سب سے بڑے کڈنی ڈائلسس سینٹر جسے شہزاد شیخ مرحوم کے نام پر شہزاد شیخ کڈنی ڈائلسس سینٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میرپور آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے, یہاں پہ موجود ہوں. اس کے روح رواں ڈاکٹر طاہر محمود انجمن فلاح و بہبود انسانیت کے صدر, ان کی ٹیم کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ اس سینٹر میں یورولوجیکل ٹرانسپلانٹ کی سرجری, کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سرجری بھی مہیا کی جائے. میرے ساتھ ایک بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی سٹوری, بلکہ دو کہانیاں, ایک برطانیہ سے اور ایک سماہنی کی سرزمین سے موجود ہیں اس وقت, جہاں پہ ایک والد کو ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونیٹ کی اور ایک بیٹے نے اپنے والد کو کڈنی دی. باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو. دو کیسز ہیں یہ. ظہیر صاحب, آپ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر بھی ہیں, میڈیسن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جنید صاحب. آج کا یہ جو ٹاپک آپ نے جس کا ابھی ذکر کیا, یہ بہت بڑا آج کا ایشو ہے, برننگ ایشو ہے کہ جتنی یہ میڈیسن کے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, جتنی میڈیسن کی زیادہ ریسرچ آ رہی ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے جائیں تو کڈنی کے پیشنٹ بہت کم تھے, لیکن آج کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو بے شمار جو ہے نا یہ کڈنی کے پیشنٹ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے جب جو 2-3 جو ہے سیکٹرز پہ ہم نے کام کرنا ہے. پہلا سب سے چیز یہ ہے کہ جو لوگ کڈنی جن کے ختم ہو چکے ہیں, جن کو جو ہے لوگ ڈرتے ہیں, اپنے عزیز ڈرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کڈنی نہیں دینا, ان کی ہم نے موٹیویشن کرنی ہے کہ کڈنی دیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم لوگ بلڈ دیتے ہیں, یہ بالکل سیف ہے اور یہ راستہ بند کر دے گا انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا. میں نے بانجے کا یہ جو ابھی راشد ہیں آپ کے ابھی آئیں گے, ان کا ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کڈنی دیا تو ہمارا 15 سے 16 لاکھ میں ہمارا یہ پورا پروسیس مکمل ہو گیا. اور اپنی فیملی کا جو کڈنی ہے یہ بہت سیف ہے, اس کا زیادہ سکسیس ریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پرچیز. لوگ کرتے ہیں 60-70 لاکھ دیتے ہیں اور وہ کڈنی کامیاب بھی نہیں ہوتا اور وہ فیملی پھر جو ہے دوبارہ سفر کرتی ہے. تو میری یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو, آپ کے بھانجے نے اپنے بیٹے کو یعنی آپ کے نواسے کو انہوں نے کڈنی ڈونیٹ کیا. اس میں ان کے اخراجات کتنے آئے؟ اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 16 سے 17 لاکھ میرے خیال میں اتنے آئے ہیں. تقریباً 12 لاکھ تو ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دیا, 4-5 لاکھ اس کے ٹیسٹوں پہ لگے. یہ 16-17 لاکھ میں یہ پروسیس مکمل ہو گیا. سکسیس سٹوری. تو دوسری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ڈونر موجود ہیں, لوگ تیار ہیں کڈنی دینے کے لیے, لیکن ان کی افورڈیبلٹی ان کی نہیں ہے, وہ فیملی افورڈ نہیں کر سکتی. تو جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ہمارا سینٹر موجود ہے, طاہر صاحب آپ کو بتائیں گے, یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ نیفرولوجسٹ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. انڈیویجولی ان سے آپ کنٹیکٹ کر کے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے, ہم لوگوں نے, میری جاب ایز اے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہے, ہم سارے ڈاکٹر اسپیشلسٹ یہاں پہ موجود ہیں. ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, جن لوگوں کے کڈنی ٹھیک ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گی کہ جو ہے کڈنی خراب کرنے میں کیا فیکٹرز ہیں. جس طرح یہ غلط جو ہے میڈیسن یوز کرنے ہیں بغیر اسپیشلسٹ کے ایڈوائس کے, پین کلر زیادہ استعمال کرنا, بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا, شوگر ہوتا ہے, اور اس طرح اکیمو کی دوائیاں, کویکس, عطائی ڈاکٹر, یہ سارے فیکٹرز ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گی. ان سے ہم نے ان لوگوں کو بھی بچانا ہے. اور یہ تیسرا جو ہمارا یہ یہاں پہ سینٹر ہے, جن لوگوں کے گردے خراب ہو چکے ہیں, وہ یہاں سینٹرز ماشاءاللہ بڑا ایک ایکسیلنٹ سینٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے. بہت سے لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. یہ میرپور میں بھی موجود ہے, بمبر میں بھی جو عتیق صاحب ہیں ان کی ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے بھرپور تعاون کرنا. تو یہ ہمارا میسج ہے کہ ایک لوگوں کو کڈنی کے لیے تیار کرنا. خود اپنے عزیز ہیں, کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, تو وہ لوگ خود کڈنی دیں. جن کے ڈونر ہیں, جو بندے دینے والے ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے جو مخیر حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں. اور تیسری جو ہے لوگوں کے جن کے گردے ٹھیک ہیں ان کو ہم نے میڈیکل کیئر کے ساتھ ان کو ہم نے گردے بچانے ہیں. یہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح. اب میں پہلے چاہوں گا کہ جن والد صاحب نے اپنے بیٹے کو کڈنی ڈونیٹ کیا ہے, اگر وہ میرے پاس تشریف لے آئیں. جی صاحب, آپ کا اسم گرامی؟ راشد طاہر. راشد طاہر صاحب. جی سر. راشد صاحب, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 42 ہے. 42 جی. اور آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 18 ہے. ان کا نام؟ احمد بن راشد. احمد بن راشد. تو آپ نے اپنے بیٹے کو کڈنی ڈونیٹ کیا. ان کو پیدائشی طور پہ کوئی مسئلہ تھا کڈنی کا؟ پیدائشی تھا. اچھا. تو جب آپ نے کڈنی دے دیا تو وہ میچ کر گیا ہے؟ بالکل الحمدللہ.
اب آپ کا بیٹا نارمل زندگی گزار رہا ہے؟ بالکل یہ آپ کے سامنے ہے, بالکل ماشاءاللہ. نارمل زندگی گزار رہا ہے. تو اتنا بڑا گردہ دل گردہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ آپ نے گردہ نکال کے اپنے بچے کو دینے کی ڈونیٹ کرنے کی ہمت کی؟ اس میں بس پہلے تو یہ ہے کہ تھا جس طرح بھی ماموں بات کر رہے تھے کہ باہر سے بھی ہو سکتا ہے, باقی معاملات بھی ہیں, لیکن پھر ذہن میں یہی بار بار بات آتی تھی کہ باہر سے اگر کسی سے لیں گے تو اس کے پاس بھی 2 کڈنی ہوگی, جیسے میرے پاس 2 ہیں اس کے پاس بھی 2 ہی ہوں گی. وہ بھی انسان ہے, اس نے بھی ایک دینی ہے. اور دوسرا جو باہر سے دے گا وہ ظاہری بات ہے کوئی انسان مجبور ہوگا, اور کسی کی مجبوری سے آپ اپنے لیے خوشی نہیں خرید سکتے. بالکل ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ بولیں کہ میں اپنے لیے خوشی خرید لوں, نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے پھر جو ہے یہی سب سے پہلے ماموں نے مجھے کہا کہ ایسا پرابلم ہو گیا, ابھی ضرورت ہے اس کی, تو اس کے لیے انہوں نے خود پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ماموں نے. جی. تو ان کا پھر وہ بلڈ گروپ میچ نہیں ہو سکا. اچھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ترتیب بنائی کہ جس طرح پہلے میرا نمبر, پھر میرے بھائی کا, پھر باقی کا, اس طرح چیک کریں گے. لیکن اس میں جو ہے سب سے پہلے میرا میچ ہو گیا, تو اس حساب سے ہو گیا یہ کام. اللہ اکبر. جی. تو ایک کڈنی کے ساتھ آپ کو زندگی گزارتے ہوئے کوئی مشکل پیش تو نہیں فی الحال کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی, بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا بالکل. تعلق کہاں سے ہے؟ سمانی سے ہی ہے. سمانی سے. جی. اور آپ جاب کیا کرتے ہیں؟ میرے سیالکوٹ میں بھی بزنس ہے اور سعودیہ میں بھی ہے, 2 جگہ پہ ہے. اچھا. جی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی آپ ہر انسان ظاہر اپنی بزی لائف ہوتی ہے اس کی, تو اس میں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی یا کچھ اس طرح ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو آپ تو یہ افورڈ کر سکتے تھے 16, 17, 18 لاکھ. تو وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ جو 2 لاکھ 1 لاکھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہی جس طرح ماموں کہہ رہے تھے کہ اسی سینٹر میں کوئی ایسا پروسیس شروع ہوگا, وہی بہتر حال ہے. میرپور میں یہاں تو کیونکہ بہت سی فیملی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو باہر سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں. پرچیز والی تو بات آپ کو تو ہوگی کہ نہیں, مناسب بات نہیں ہے یہ کہ کسی دوسرے مجبور انسان سے جو فائدہ اٹھانا اس کی مجبوری کا اور اپنے لیے کرنا. یہ بہت بڑا میسج دے رہے ہیں راشد صاحب. آپ کا نام بیٹا؟ احمد بن راشد. جی احمد بھائی, جب آپ کو آپ کے والد محترم نے گردہ ڈونیٹ کیا, آپ کو ٹرانسپلانٹ ہو گیا یہیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں, اب آپ کی لائف نارمل ہے؟ جی الحمدللہ نارمل ہے. اچھا. تو آپ وہ لوگ کہ جو اعضاء اپنے عطیہ نہیں کرتے, جبکہ علماء کرام بھی یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں؟ دینے چاہیے؟ جی دینے چاہیے. ڈونیٹ کرنا چاہیے. جی. تو اب آپ کو اپنے ابا جی سے زیادہ پیار ہو گیا جی. یا پہلے سے زیادہ؟ نہیں پہلے سے. اللہ آپ کو صحت دے. بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی. میں چاہوں گا کہ اب وہ کیس ہمارے ساتھ تشریف لائیں کہ جن کو ان کے بیٹے نے جو ہے گردہ ڈونیٹ کیا, کڈنی ڈونیٹ کیا. برطانیہ سے آپ تشریف لائے ہیں. الطاف بروٹی صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں سماجی حوالے سے. الطاف بروٹی صاحب, تھوڑا ذرا پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں. آپ برطانیہ کب گئے اور آپ کو یہ گردے کا مسئلہ کب پیش آیا؟ میں تو برطانیہ گیا تھا 1967 فرسٹ چکسواری سے. چکسواری سے. تو گردے کا ایشو بنا میرا خیال ہے تقریباً 10 سال ہوگی, مے بی لٹل بٹ مور. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ میرے کڈنی سے 19% آن دا ویری لاسٹ اسٹیج. اس کے بعد میں نے کیا کہ چلو دوائیوں کے اوپر کنٹرول ہو رہی تھی. جب کڈنی آئے نا تقریباً 10% کے قریب, دین سچویشن ہمارا سیریس ہو گیا تھا کہ ابھی کیا کرنا ہے. ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ ڈائلسس میں چلے جائیں, اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کی کوشش کریں. اور ڈائلسس کے میں نے کیس دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ دے کین لاسٹ اے ویری لانگ ٹائم. مگر کڈنی ٹرانسپلانٹ جو کرانا ہے اس کے پہلے میں نے کیا ہے کہ میں نے ادھر پاکستان میں بھی انگلینڈ میں بھی سارا فل انکوائری کیا ہے بیفور آئی ٹک دا ٹرانسپلانٹ. اس میں نقصان کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے. اور جب ڈیسیجن ہوا میرے بچے کا کڈنی لینے کا, اینڈ وی ڈڈ سم ٹیسٹ, اور ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو میرے بچے کا کڈنی تھا نا, دیٹ واز پرفیکٹ میچ, جس کو کہتے ہیں 100%. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے پاکستان میں بھی. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً ابھی 63 ہے. اس وقت یعنی کہ 57 6 سال پہلے 57 تھی. اور آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ ابھی وہ 38 کا ہے, تو 6 سال پہلے وہ 32 کا تھا. 32. ہاں جی. تو آپ دونوں تقریباً ینگ تھے.
हाँ यंग ही थे ठीक है अच्छा माशाल्लाह। ठीक जी तो जब मैंने इंक्वायरी की है ना अपने डॉक्टरों से तो हमको पूरी एश्योरेंस मिली है कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा इफ़ आई टेक द किडनी फ्रॉम माय सन। तो हमको ये फिक्र था कि हो सकता है एनीथिंग हैपन्स टू माय सन इट इज़ वेरी क्रिटिकल, एक किडनी बाकी रह जाएगा। जब तसल्ली होगी है कि एक किडनी के ऊपर आदमी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है, वेरी नॉर्मल लाइफ। उसके बाद जब मैंने इंग्लैंड में देखा तो गोरे लोग जो है ना वो सिस्टर को देती है, भाई को देता है, बाप बेटे को देता है। हाँ नॉर्मल। तो हमारे लोग क्यों डरते हैं? हमारे लोग मैं अपनी ज़बान च गल पाई करना कि असल ना ये गल बाने ना कि मेरी उम्र है मिसाल है 60 ईयर ओल्ड माड़ा बच्चा ले किडनी देसी उन्हें यरा असा लाई खाई दिया ते क्या निक्के निकाल मतलब ज़िंदगी ख़राब कर राइट। एक्चुअली दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, ये सच नहीं है। देयर आर पीपल लिविंग विद वन किडनी, ठीक है जी। तो फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट हो गया? जी फिर उनका ब्लड टेस्ट वगैरह किया और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2017 में 6 ईयर्स अगो। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अभी 6 साल हो गए। तो अभी मैं इधर पाकिस्तान आया हूँ, मीरपुर से कल मैंने चेक कराया था अपना किडनी फंक्शन और किडनी फंक्शन ओवर 90% अभी भी शो कर रहा है। तारक लैब से अभी रिपोर्ट आपने डॉक्टर साहब को दिखाई है? हाँ जी। और 100% वो कह रहे हैं कि नॉर्मल बंदे से भी ज़्यादा नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल माशाल्लाह। हाँ। तो आपका बेटा सेहतमंद है? वो भी सेहतमंद है, वो फुटबॉल खेलता है, इज डूइंग हिज बिजनेस, इज अ चार्टर्ड बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सो इज डूइंग हिज एवरीडे एक्टिविटीज, इज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। सेहतमंद होने के बाद आपके इखलाक पे कोई असर तो नहीं पड़ा? जी मतलब कोई दूसरी शादी वादी कोई इस तरह का सिलसिला? एक बात मैं आपको बता दूं, इट्स ओनली अ स्मॉल क्या बोलते हैं, छोटी सी स्टोरी है एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। ये थी कि मेरे एक पोता जिसकी उम्र है 7-8 साल और 2 मेरे बच्चे की बेटियां थी। वो उधर बैठे हैं डाइनिंग रूम में, तो मेरे साथ जो मेरा ग्रैंडसन है ना वो हमसे पूछ रहा है कि दादा यू टुक द किडनी फ्रॉम माई फादर। मैंने बोला यस। फिर उसके बाद वो बोलता है कि आर यू हैप्पी, यू लिविंग अ नॉर्मल लाइफ? मैंने बोला यस। मैं सोच रहा था कि वाई इज़ ही आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस। थोड़ी देर बाद 2-3 उसने सवाल किए, तो उसके बाद बोलता है दादा व्हेन आई ग्रो बिग आई विल गिव माई किडनी टू माई डैड। माशाल्लाह, दिस इज द टेक होम मैसेज। मरूटी साहब, ये डॉक्टर ताहिर साहब अब यहाँ पे डायलिसिस सेंटर यहाँ चला रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। अल्लाह ताला ने फैज़ का सबब बनाया। आप ही की तरह के चौधरी ज़हूर साहब की बेटी जो थी वो उनकी किडनी फेलियर हो चुकी थी और ज़हूर साहब ने अपनी बेटी को किडनी दिया, लेकिन वो बेटी हालांकि हकीकी से जा मिली। अपनी बेटी के नाम पे उन्होंने 2 मशीनें फिर 4 मशीनें रख के यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया। अब यहाँ पे 27 मशीनें हैं, करोड़ों रुपए का बजट है, ये तमाम वॉलंटियर्स की टीम है। ये एक चवन्नी भी जो है यहाँ से उसकी चाय के भी रवादार नहीं हैं और 100% जो यहाँ पे डोनेशन आती है ये लोग इसी पेशेंट के ऊपर, इसी सेंटर के ऊपर खर्च करते हैं। अब ये यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट सेंटर, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर, इसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर शफाक राजा इज़ ऑन बोर्ड, ही इज़ अ सर्जन। आप इस नोबल काज को आप क्या कमेंट करेंगे? लोग आपको देख के, आप एक रोल मॉडल हैं, आप क्या मैसेज दें? थैंक यू। मैंने सारी ज़िंदगी बिज़नेस की है, सारी दुनिया देखी है एंड प्रायर टू ट्रांसप्लांट मैं इधर पाकिस्तान में था और कराची से लेकर पिंडी तक मैंने सब रिसर्च की है एंड उसके बाद कंक्लूजन पे आया था कि मैंने क्या करना है। फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस जब हम लोग इधर रह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, हमारी नॉर्मल सोच यही होती है कि किडनी का मामला बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं या रावलपिंडी की तरफ जाते हैं कि उधर से इलाज होगा। देयर इज़ नो सच थिंग इन मीरपुर। मैं आपको ये बताऊं कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मैं इधर आया हूँ आज सुबह एंड आई सो दी ट्रांसप्लांट सेंटर। इधर जो आप डायलिसिस करते हैं और इसका जो ट्रांसप्लांट में शुरुआत होती है एंड आई वाज मोर देन इम्प्रेस्ड कि टू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस इन मीरपुर। एंड पीपल शुड ओन इट। पीपल शुड ओन इट, नॉट शुड ओन इट। मैं ये भी मैसेज देता हूँ जो हमारी कम्युनिटी है ना ओवरसीज़, इंग्लैंड या किसी मुल्क में रहते हैं, इट डजंट मैटर वेयर यू आर लिविंग, और जो हमारे दिल खोल के लोग मदद करते हैं कि जाएँ जी फलाने सिस्टम में इतनी सपोर्ट करें या फलानी जगह में इतनी सपोर्ट करें। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि उन लोगों को मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़
do support this hospital, and this is the place and the right place. इसका जो मैंने देखा है स्टैंडर्ड क्लीनिनेस, उसका मशीनरी, सब जो कि सिचुएशन माहौल मैंने देखा है ना, and I am more than impressed. और आप भी खुद इसको ऑन कर रहे हैं? 100%. जी, मैं गुजारिश करूंगा हमारी जो यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहिबा, जब भी नेफ्रोलॉजिस्ट कहता हूँ तो मेरे दिल पे एक ज़र्ब लगती है कि डॉक्टर शहजाद शेख साहब बड़े भाई भी थे, अजीज़ भी थे, दोस्त भी थे, और इस सेंटर में उन्होंने जिस तरह मिट के काम किया कोई इमेजिन नहीं कर सकता. सॉफ्ट स्पोकन, सिंपैथेटिक टू एवरी ह्यूमन बीइंग, और वो खूबियाँ अल्लाह पाक ने डॉक्टर शहजाद शेख को दी थी कि मैं बयान करने से कासिर हूँ, मेरे अल्फाज गूंगे हैं. डॉक्टर साहिबा, आपका इसमें एग्जाम? डॉक्टर समरीन अजीज़. डॉक्टर साहिबा, क्या कहती हैं ये जो डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट आते हैं जिनका किडनी इम्पेयर होता है, इसकी वजह क्या है? डिफरेंट एज ग्रुप में किडनी फेल होने की डिफरेंट वजूहात हैं. जो हमारे पास बड़ी उम्र के लोग आते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, मोर देन 50-40 हैं, उनमें ज़्यादातर शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा दिल की बीमारियाँ मुख्तलिफ, बेजा गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो किडनीज़ को डैमेज कर देते हैं, कुछ दर्दों के इंजेक्शन ऐसे हैं जो पेशेंट रूटीन में लगवाते रहते हैं. दर्द हुआ, किसी डॉक्टर के पास गए, टीका लगवा लिया, बस अपनी दर्द का बाकायदा इलाज नहीं करवाया. एनसेड्स की कैटेगरी है बेसिकली, वो किडनीज़ को डैमेज करते हैं. जो यंगर पॉपुलेशन आ जाती है आपके पास, यानी जो कम उम्र के लोग हैं, उनमें किडनी इटसेल्फ पैदाइशी तौर पे या जेनेटिकली तौर पे उसके अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं. बिल्कुल सही. तो ये जो आप डायलिसिस ज़ाहिर है कि यू आर हियर इन द फुटस्टेप्स ऑफ द जायंट्स. डॉक्टर शहजाद शेख, आप जब यहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत से लोग हैं जो कि उस वक्त के हैं, तो वो जिक्र तो करते होंगे? बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं. पेशेंट जब मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था तो जो भी मरीज़ आता था तो सबसे पहले तो उन्होंने शहजाद शेख साहब का अफसोस करना है, उनको याद करना है. अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनकी डेथ के बाद, वो अभी तक उनको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं. बिल्कुल सही. ऐसे ही जैसे उनकी फैमिली का कोई मेम्बर है. बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर साहिबा, बड़ी मेहरबानी. चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब. जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी डायलिसिस सेंटर शहजाद शेख किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इनसे बात कर रहे थे. अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ. अगर कोई कम उम्र का बच्चा अपने वालिद को किडनी देता है या बड़ी उम्र का वालिद अपने बच्चे को किडनी देता है, बहन भाई को देती है, भाई बहन को देता है, मियाँ बीवी को दे देता है, बीवी मियाँ को दे देती है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं होती? देखिए, जो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है उससे पहले जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनकी बॉडी की पूरी डिटेल में टेस्ट होते हैं. ठीक है, वो गुर्दे का फंक्शन भी देखते हैं, कुछ स्कैन स्पेसिफिक ऐसे हैं गुर्दे के, तो जेंडर डजंट मैटर, एज डज नॉट मैटर. आपके गुर्दे का फंक्शन कैसा चल रहा है उस वक्त, वो ऑब्वियसली जिसने ट्रांसप्लांट आपका प्लान किया है वो टेस्ट करेंगे. अगर वो मैच करते हैं तो इसमें जेंडर और एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ही कैन डोनेट और शी कैन डोनेट. और दूसरी बात ये कि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं फ़िलहाल, जो होटा और पी होटा की हैं, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज़ जिनको हम कहते हैं, हमारे कंट्री में इस वक्त रूल है कि सिर्फ लिविंग ट्रांसप्लांट हो सकता है, यानी एक ज़िंदा इंसान ही अपना गुर्दा डोनेट कर सकता है, और दूसरा वो रिलेटेड होना चाहिए, यानी वो आपका रिश्तेदार होना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है और कोई आपको बता रहा है कि हम आपको कहीं से गुर्दा खरीद के लगवा देंगे, तो ये बात जहन में रखें कि दैट इज़ इलीगल, और जो काम इलीगल होगा उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस 100% होंगे. ये बात जहन में रखें आप. बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी. अभी मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ताहिर साहब जो हैं, जो इस तमाम सेंटर को चला रहे हैं, मेरी आंखों के सामने दोस्तों के एक ग्रुप ने डॉक्टर साहब को धक्का दिया और डॉक्टर साहब अपने दुनिया के सारे कामों से गए और इसी काम में अब इनके शब व रोज़ गुजरते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनसे वो काम ले लिया, कबूल कर लिया. अल्लाह ताला बड़ा गैरत वाला है. अल्लाह ताला कमाई भी उसी की कबूल करता है जिसको अल्लाह इस काम में कबूल करता है, और वक्त भी उसी का कबूल करता है जिसको अल्लाह इस काम में कबूल करता है.
डॉक्टर ताहिर साहब, ये जो सारी एक्सरसाइज आज ज़हीर साहब ने, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने यहाँ पे रखी, अल्ताफ़ बरूटी साहब, शाहिद साहब, उनका बेटा अहमद, ये किडनी ट्रांसप्लांट की ये जो एग्जांपल्स हैं, आप अरसे से कोशिश कर रहे हैं यहाँ सेंटर में शुरू हो, सर क्या कहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अंसारी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दो बातें मैं इस बात पे आने से पहले करना चाहता हूँ। एक, जब हम बचपन में सुनते थे कि कोई मरीज़ एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, ब्लड की ज़रूरत है, कोई बंदा ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होता था। खौफ था कि पता नहीं खून निकल गया जिस्म से तो क्या हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ब्लड बैंक चल रहे हैं, लोगों को ये सहूलत मिल रही है, उनकी जानें बचाई जा रही हैं। इसी तरह जब आज से 20-25 साल पहले गुर्दे फेल होते थे, किसी को उसको इस्लामाबाद लाहौर वगैरह भेज दिया जाता था, तो अक्सर ये देखा कि वो रास्ते में दम तोड़ देते थे। लेकिन जब ये सेंटर हमारे उन बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों ने जिनमें इसमें मेहनत की, इसको बनाया, तो उसकी वजह से वो वक्त ज़ाया होना, वो वसाइल का ना होना, और वो एक कैफियत जो तारी होती थी इंसान पे बेबसी की, वो ना होना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 20 साल का तजर्बा है। 20 साल में हमारे पास 15-16 साल पुराने जिंदा मरीज़ मौजूद हैं कि जो डायलिसिस की वजह से अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब हम इतने तजर्बे के बाद, इतने एक डिलीवर करने के बाद एक काम को, हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम पिछले आपको इल्म में, और आपने हमारा इसमें बड़ा साथ दिया किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, लेकिन उसमें हमें कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। आज जो आपने ये बच्चों, एक बेटे से, एक बुजुर्ग से, उनसे आपने देखा कि किस तरीके से उनके वालिद ने, एक ने और एक बेटे ने वालिद को किडनी डोनेट किया, और वो हमारे सामने मौजूद हैं। उनकी सेहत देख लें, उनकी बातचीत देख लें, सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि डोनेट करने से खून या गुर्दा या कोई भी चीज़ इंसान के, अगर अल्लाह ने उसको दो चीज़ें अता की हैं, जैसे दो आँखें, दो हाथ, एक उज़ू ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास राजा अशफाक साहब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन मौजूद हैं, बाकी टीम हमारे पास मौजूद है। वसाइल की कमी है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, जिस तरह ये आज़ाद कश्मीर का पहला डायलिसिस सेंटर और कामयाब तरीन डायलिसिस सेंटर है, उसी तरीके से हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर कायम कर सकें। और ये लोग जो एक दफ़ा जब इनके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं और मुसलसल सारी ज़िंदगी वो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस पे जाते हैं, तो वो नौबत ना आए, ये भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, उसके लिए हमें वसाइल की ज़रूरत है। तो मैं देखने वालों, सुनने वालों से अपील करूँगा वो यहाँ पे आके देखें इस काम को, और अगर उनका दिल मुतमईन होता है, और ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, और वो इसमें डोनेट करें, ताकि ये सहूलत एक तो यहाँ पे मकामी तौर पर मैसर आ सके, और अखराजात का जो इशू है उसके ऊपर भी हम कोशिश करके सब मिनिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सहूलत पहुँचा सकें। यहाँ पे आप दीनी इल्म और शगफ मुझसे ज़्यादा रखते हैं। बाज़ लोग पहले ये कहते थे कि देखिए जनाब, आप डोनेट नहीं कर सकते। अब उलमाए कराम का फतवा इस हवाले से अगर है कोई, तो मेहरबानी करके शेयर कर लें। जी बिल्कुल, इख्तिलाफ राय तो अमूमन आपको पता है उलमा में होता है, मुख्तलिफ कुरानी आयात या हदीस की मुख्तलिफ तौजीह पेश की जाती है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो उलमा की वो इस चीज़ का अब फतवा देती है, वो इस पर इसको जायज़ समझते हैं। और एक इंसानी जान बचाना, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। अगर एक बाप, बेटा, भाई, बहन कोई किसी अपने अजीज़ को गुर्दा अतिया करता है, तो उसने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और मेरे ख्याल में उलमा इस पर मुतफिक हैं। कुछ इख्तिलाफ राय होना वो इतना अहम नहीं है, लेकिन नीयत का मसला है, जो नीयत साफ़ होगी, जान बचाने का मसला होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें अजर और सवाब अता फरमाएगा। अब्दुस्तार ईदी मरहूम जो थे, उन्होंने अपने तमाम आज़ा डोनेट करने का कहा था कि जो जो आज़ा मेरे किसी को के काम आ सकते हैं तो वह आप ले लें। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये वसीयत की थी, और बेशुमार और लोग करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारे मुल्क में उतना ट्रेंड नहीं बना। इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो हमारे लोग जो मुतासर होके बेचारे काम काज से चले जाते हैं, अपने किसी काम के नहीं रहते, घर वालों के लिए दुख तकलीफ़ का बायस होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल करने के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ जो है हमारे माशरे में, और फिर हम मुसलमान हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, हमें तो ये हुक्म है, तो इस पर जितना ज़्यादा हम अमल करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को सहूलत देंगे, जितने लोगों को हम उनकी फलाह बहबूद का काम करेंगे, उससे इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साहबा, इसमें ग्रामीण का डॉक्टर समरीन। डॉक्टर समरीन,
डॉक्टर शहजाद शेख साहब आपके छोटे भाइयों की तरह उनको भी दुनिया जहान से लोग रब्ता करते थे और मुझे याद है वो आपसे आके खुशी से बता रहे होते थे कि 2 मशीनें फ़लाँ साहब ने बरतानिया से डोनेट कर दी, 1 मशीन फ़लाँ साहब ने डोनेट कर दी। तो उनकी कमी तो महसूस होती है, लेकिन प्रोफेशनली मेरा ख्याल है डॉक्टर समरीन साहिबा की मौजूदगी से आपके कदम मजबूत हुए हैं। जी बिल्कुल, जो ही डॉक्टर शहजाद साहब बीमार हुए थे तो मैंने फौरी तौर पे ये कोशिश शुरू कर दी थी कि आर्जी तौर पे हम किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर लें ताकि गैप ना आए, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी थी, उनके फ़ौत होने के बाद फिर हमें मुस्तकिल बुनियादों पे इसकी ज़रूरत पड़ गई। और हमारी खुशकिस्मती है कि मीरपुर में डॉक्टर समरीन मौजूद थी और इन्होंने हमारा साथ दिया और इसको ज्वाइन किया। इसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का भी एहसानमंद हूँ, अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो जो प्रोफेशनल गैप था वो डॉक्टर शहजाद की ज़िंदगी में ही हमने कोशिश करके तो वो नहीं आने दिया। और आइंदा भी हमें उम्मीद है, इंसान तो चले जाते हैं, दुनिया चलती रहती है, तो उनकी यादें हमारे दिल में हैं, उनका मुकाम और मर्तबा, और हर वक्त हम उनके लिए दुआएं करते हैं। तो लेकिन ये कि दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, उसके लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेशनली अब आपके पास यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम की ज़रूरत होती है, एक यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट सर्जन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर समरीन आपके पास मौजूद हैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर अशफाक राजा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक राजा साहब एज अ यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट सर्जन आपके पास मौजूद हैं। तो अब फंडिंग दरकार है। गालबन हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने KIC बनाया था, उनकी फैमिली, राफे सलीम, राशिद सलीम, आसम सलीम, आसिफ सलीम, ये पूरी टीम और भी बहुत से लोगों की टीम आपके साथ मौजूद है। इंशाल्लाह ये ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा। बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द बनेगा और उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट सर्जन्स की टीम हमारे साथ मौजूद है। राजा अशफाक साहब के उनके साथ लिजान है और वो भी यहाँ आने के लिए और फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये ट्रांसप्लांट सेंटर जैसा ज़हीर साहब ने बताया कि इनका कोई 16 लाख के करीब अखराजात आए हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह इससे भी बहुत कम अखराजात होंगे, चूँकि ये जिस तरह का डायलिसिस सेंटर हम चला रहे हैं टोटली फ्री ऑफ कास्ट चल रहे हैं, किसी मरीज़ से कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसी तरह इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट की भी सहूलत जो है वो हम बेहतर से बेहतर तरीके से मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा आखिर में मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूँ। ज़हीर साहब, आप के जो नवासे हैं इनको गुर्दा मिला, अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी इनको दी, इनके वालिद जो कि आपके भांजे हैं उन्होंने गुर्दा दिया, आप खुद भी डोनर्स में शामिल थे लेकिन मिस आपका मैच नहीं कर सका, तो अब आप मैसेज क्या देंगे तमाम दुनिया में जो लोग आपको ज़हीर भाई देख रहे हैं? जुनैद भाई, आज की जितनी भी हमारी डिस्कशन डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ताहिर साहब ने, हमारे डोनर्स ने जो बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी आर्जी है। जब आप श्रीलंका की मिसाल देखेंगे, हर बंदे, वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, उनकी इसी तरह मज़हब की तरफ से भी, जैसा हमारा मज़हब कह रहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इन तालीमात के बावजूद हम लोग अगर आगे डोनेट करने में अगर हम एजिटेट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। तो जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को आपको सबको तकलीफ देने का मकसद यही था कि अपने प्यारों का ख्याल रखें। अतायत, ये गैर कानूनी लोग, जो ये उमर शरीफ जो हमारे टीवी एक्टर थे, आपको पता है कि उनकी बेटी की डेथ इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट से हुई। ये भिंबर में ये वाक़या ये कह रहे थे, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये कहाँ हुआ था, लेकिन जहाँ भी हुआ था वो इलीगल ट्रांसप्लांट से हुआ था। तो अभी भी लोग जा रहे हैं। जब हम इस ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में गुजरे तो बेशुमार एजेंट्स ने, लोगों ने हमसे रब्ता किया कि हम इतने पैसे दें, 50 लाख 60 लाख, तो उस चीज़ में ना पड़ें। आप लोगों को बता रहे हैं कि खुद डोनेट करें, इलीगल काम में ना पड़ें, क्योंकि जो आफ्टर केयर सर्विस होती है, जो लोग चोरी छुपे जो इस तरह इलीगल ट्रांसप्लांट करते हैं वो ट्रांसप्लांट करके तो भाग जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो किसी स्पेशलाइज सेंटर के बगैर, किसी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट और एक प्रॉपर सेंटर के अलावा वो मुमकिन नहीं है। तो दूसरे नंबर पर जो लोग तैयार हैं, जो लोग दे सकते हैं, जो लोग किडनी देना चाह रहे हैं, तो लोग उनसे तामन करें। और तीसरे नंबर पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो हैं, हम जो किडनी ख़राब होने की बड़ी वजह हम लोग हैं। आप लोग जो पेशेंट जो क्वैक के पास जाता है, अतायत हकीमों के पास जाता है, वो अस्पतालों से डरते हैं
अस्पताल में जाने से पहले मैं हम लोगों को कहते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, आप उनके पास जाके इलाज करवाएं, लेकिन लोगों का ये है कि वहाँ इलाज बहुत महंगा है, गैर ज़रूरी दवाइयाँ दी जाती हैं और अरसे तक दी जाती हैं, घरों में जाके लोग खुद दवाइयाँ जाके खाते रहते हैं। तो उनके लिए मेरा ये डॉक्टर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मरीज़ को जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक दवाइयाँ दें, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम ना करें, मरीज़ों के लिए काम करें। और जो हमारे डिस्पेंसर्स हैं या हमारे घरों में लोग हैं, मैंने ये भी प्रैक्टिस देखी है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिखा है, तो वो जब पेशेंट लेके गाँव में जाता है तो जो गाँव का डिस्पेंसर है जो वो कहता है नहीं ये दवाई ऐसे नहीं, ऐसे खाओ, इसको वो चेंज कर देता है। तो इस तरह की अगर कोई हुई तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनको हम वार्न भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इंसानी जान बड़ी कीमती है, इंसानी गुर्दे बड़े कीमती हैं, और एक दफ़ा जब ये चीज़ें सफ़र हो जाती हैं तो वो बैक नहीं आती। तो इन चीज़ों से बचें, अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं, और ये जितना बाकी सारी डिस्कशन हुई है, जो मुखैर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है तो उन लोगों के लिए काम करें, जो बिल्कुल लासहारा हैं, एक टेस्ट भी नहीं करवा सकते। आपकी ये ज़िंदगी की में ये जो दी हुई कमाई है यही आपके आगे काम आएगी। और भरपूर तरीके से लोग तामन कर भी रहे हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और जो लोग नहीं तामन कर रहे या किसी वजह से नहीं कर रहे थे, वो आर्गन भी डोनेट करें, पैसा भी डोनेट करें उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। एक छोटी सी हिकायत मैंने पढ़ी थी कि एक आदमी ने चिल्ला कशी के लिए दुनिया से किनारा कशी कर ली, बहुत इबादत की, तो अरसे बाद उसको आवाज़ आई कि जाओ फलां आदमी बाज़ार में जो बर्तन ख़रीदता है बेचता है उससे जाके मिलो, वहाँ से तुम्हारी मुराद पूरी होगी। जब वो वहाँ पे गया तो देखा कि एक बुढ़िया वहाँ पे एक बर्तन फ़रोख्त कर रही थी, जो कह रही थी कि मैं घर से बर्तन लाई हूँ और ये मैं 6 दिरहम का बेचूँगी, लेकिन कोई भी उसकी कीमत 2 दिरहम 3 दिरहम से ऊपर नहीं लगा रहा था। तो एक बंदे के पास जब वो पहुंची तो उस बंदे ने कहा कि भाई ये तुम बेच रही हो तो इस तरह है कि मैं इसके 30 दिरहम दूंगा। तो वो खातून बुढ़िया बड़ी हैरान हुई, तो उसने 30 दिरहम उसको दिए, बर्तन उससे ले लिया। तो इन साहब ने उनसे पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, जबकि इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू 2 या 3 दिरहम से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि इसका बेटा बीमार है, उसके बेटे के इलाज का खर्च और उसके 7 दिन के खाने पीने का खर्च मैंने उसको दिया है, ये तजारत मैंने अल्लाह के साथ की है। तो उसको फिर आवाज़ आई गैब से कि अगर तुम अल्लाह को ढूंढना चाहते हो तो गारों में तन्हाई में जाने की ज़रूरत नहीं, इंसान किसी ज़रूरतमंद की खिदमत करो, अल्लाह चल के तुम्हारे पास आएगा। आज का मैसेज इतना ही है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।